अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हैं आप? सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीआरपीसी का सेशन ट्रायल। ए टू जेड में हर चीज़ आपको बताऊंगा। और प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑफ द सेशन कोड अंडर सेक्शन 193 सीआरपीसी 193 सीआरपीसी को पढ़ेंगे। नंबर 1 पे कॉग्निजेबल ऑफ ऑफेंस बाय सेशन कोड 193 सबसेक्शन 1 except as otherwise express provided by this code or by other law the time being in force, no court of session shall take cognizance of any offence a court original jurisdiction. अब इसका सब सेक्शन 2 है। एडिशनल सेशन जज एंड any assistant session judge shall try such case only provisional government by journal and special order may be direct them try as session judge and division judge of journal special order make the over them। पहला आपको कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय सेशन कोड क्लियर हो गया कि 193 सीआरपीसी के तहत होता है। अभी आपका सेकंड बताएंगे। मजिस्ट्रेट सेंड द केस ऑफ सेशन कोर्ट के मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट को कौन से सेक्शन के तहत केस भेजता है? ये 190 अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 3 के तहत मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट को केस भेजता है। इसका 3 पढ़ लेते। अपॉन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन other a police officer upon the own knowledge and suspicion such offense committed which he might try or send to the court of session trial, a magistrate take the cognizable offense under subsection 1 an offense triable exclusively by a court shall without recording any evidence send the case of session trial। सेकंड भी क्लियर हो गया और नंबर 3 भी इसी बात में क्लियर हो गया। और मजिस्ट्रेट जस्टिफाइड सेंडिंग केस वो भी हो गया। स्टेट प्रोसिक्यूटर ये भी ऑलरेडी क्लियर हो गया। अब आ गई ये बात सेशन ट्रायल की। 5 तक 190 से लेकर 193 तक सेक्शन एप्लीकेबल है। B6 में हम पढ़ते हैं ट्रायल बाय एडिशनल सेशन जज सेक्शन 193 सब सेक्शन 2 एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज shall try such case only as provisional government by general special order direct them to try or as the session judge of division by general special order over to the them। ये भी क्लियर हो गया।
अब क्या प्रोसेस होता है? ट्रायल बाय एडिशनल सेशन जज, वो हमने आपको बता दिया। अभी नंबर 7 पे आए, सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट टू एक्यूज 265 CRPC अंडर सेक्शन। ये क्या है सेक्शन? सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट to the accused in a case instituted upon the police report copy following the document shall be supplied free of cost to accused not later than 7 days before commencement by trial, the namely the number 1 the first information report, the police report, the statement of all witnesses recorded the under section 161 and 164। नंबर 4 पे है the inspection note recorded by investigation officer on his 5th visit to place of occurrence and note recorded by him is recovered made any provided that any part statement recorded the section under 161 and 164 the such disclose the accused would be the public interest, the such the part of statement shall be excluded from the copy of statement and furnished to accused in all cases instituted upon a written complaint। अब आ गया है when a charge frame to be framed when charge to be framed। इसका it is after pressuring the police report as the case may be, the complaint and all other documents statement filed, the prosecution to the court the opinion, the 3 ground proceeding trial, accused shall be framed the written charge against the accused। ये भी क्लियर हो गया कि 265D के नीचे CRPC सेक्शन चार्ज फ्रेम होता है और एक्यूज को बाकायदा तौर पर कंप्लेंट लिखाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आर यू गिल्ट और नो। उसमें फैसला हो जाता है। अगर वो एक्यूज ट्रायल चलाना चाहता है तो वो कहता है आई हैव नॉट गिल्ट, आई कंटिन्यू टू ट्रायल, तो वो ट्रायल चलाना चाहता है तो चला सकता है। अब आता है एक्यूज्ड आस्क्ड टू प्लीड गिल्टी और नॉट 265 ECRPC, ये भी चार्ज का एक हिस्सा ही है। The charge shall be read and explained to the accused and shall ask whether he guilty or has any defense to make. If accused plead guilty, the court shall record plead and may in the discretion convict him thereon। अब आता है 265F के नीचे रिकॉर्डिंग द एविडेंस फ्रॉम फॉर द प्रोसिक्यूशन 265 CRPC।
If accused plead guilty or the court is discretion does not convict plead, the court shall be proceed to hear the complaint, if any, and take all such evidence as may be produced in support of prosecution. First of all, session trial बिगिनिंग दी स्टार्ट होता है तो SHO कंप्लीट चालान करता है 173 के नीचे पुटन ऑफ कोर्ट कर लेता है। प्रोसिक्यूशन ब्रांच क्या करता है तो वो फाइल मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफ़र करके ट्रायल के लिए पुटन कोर्ट कर लेता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट 193 का प्रोसीडिंग करके ये सारे मराहिल से गुज़र के फिर उसके बाद उस सेशन जज के पास वो फाइल भेजता है। तो सेशन जज या खुद वो करता है या जस्टिस ऑफ पीस किसी और जज को ट्रांसफ़र करवाता है। कोई भी एडिशनल सेशन जज हो उसको ट्रांसफ़र भी करवा सकता है, वो उसकी ट्रायल फेसिंग करता है। फिर उसके बाद ये प्रोसीजिंग स्टार्ट हो जाता है। सप्लाई स्टेटमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एक्यूज़ 265C के ये स्टार्ट हो जाता है। तो 265C में जब एक्यूज़ की अटेंडेंस कंप्लीट हो जाता है, वो कोर्ट में हाजिर हो जाता है, तो उससे टर्म इंप्रेशन और सिग्नेचर लिया जाता है चार्ज फ्रेम के लिए विद 7 डेज, और 7 दिनों के अंदर अंदर वो चार्ज फ्रेम करेगा। फिर अगला मरहला जो आएगा व्हेन द चार्ज ऑफ बी फ्रेम्ड, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 265D के नीचे चार्ज फ्रेम होता है। और जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो चार्ज फ्रेम के दिन एक्यूज़ को पूरा कंप्लेंट लिखवाया जाता है। पूरा जो FIR में है वो उसको लिखवाया जाता है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। तो फिर उसके बाद वो एक्यूज़ को वो सारे चीज़ बताया जाता है कि आप अपना जुर्म मानते हो या नहीं मानते, या ट्रायल चलाना चाहते हो। आइए, अरे भाई कौन जुर्म मानता है, कौन अपने आप को कन्विक्ट करना चाहता है? वो कहता है आई एम नॉट गिल्ट, आई प्रोसीड ट्रायल। मैं अपना डिफेंस पेश करूँगा, मैं अपना ट्रायल स्टार्ट करूँगा। उसके बाद मरहला आ जाता है रिकॉर्डिंग द एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन 265 CRPC। फिर उसके बाद 265 CRPC का मरहला आ जाता है। प्रोसिक्यूशन अपनी विटनेस को बुला के उनकी स्टेटमेंट करवाता है और डिफेंस कौंसल उसके ऊपर क्रॉस करता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सुबह आपको और चीज़ें भी मैं सेशन ट्रायल के बारे में और भी बताऊंगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो कि एक ही वीडियो में कंप्लीट होना नामुमकिन ही है, क्योंकि एक ही वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी टाइम दरकार होता है। लेकिन इतना टाइम न देखने वाले के पास होता है और ना हमारा पास भी कभी कभी टाइम होता है। मुझे किसी लालच का शौक़ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि मैं इल्म को फैलाऊँ, जो कुछ मुझे आता है वो अगले को दूँ। थैंक यू फॉर गाइस वीडियो वाचिंग करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी तमाम तर वीडियो को देखिए, सुने, आपकी नॉलेज में इजाफा किया है। जस्ट फॉर चैनल आई मेक द नॉलेज फॉर शेयरिंग एवरी मैन द लॉ रिलेटिंग। जितने भी है मेरे भाई बहनें, सब के लिए मैंने ये कोशिश किया कि मेरे अंदर जितना भी इल्म है मैं शेयरिंग करता रहा हूँ।